Hello friends, welcome back to my channel Learn Easy. In this we are doing chapter number 5 from your class 6 NCERT maths textbook, Understanding Elementary Shapes. So today we are going to understand about the various types of the angles which are made by the hands of the clock, and we will also focus on the directions, what type of angles are made. So in this we are going to solve the second exercise, part 2. Friends, if you like my video, please hit the like button and share it with your friends. And if you haven't subscribed my channel yet, search on the YouTube as Akrishi Agarwal and press the bell icon as indicated by the arrow to subscribe the channel for regular updates. Let us begin with the first topic, rotation. As you can see on the screen, I have made 3 figures. For all of you, to make you understand the basics of the rotation is that we focus the rotation on 2 types. That is, first is directions and second is the clock. If I focus on directions, we have 4 directions as indicated in the figure. Yes, so you can see we have 4 directions: north, south, east and west. So, and the plane has been divided into 4 equal parts. So if I cover any one quadrant, any one part out of 4, we get 1 by 4 is the rotation. Covering the 2 parts as indicated by the red arrow is 1 by 2. Covering the 3 quadrants, covering the 3 equal parts, we get 3 by 4. And covering with the one entire circle, it's called 4 by 4, or we can call it as 1. If I move to the say clock, yes, so in the clock we have 12, 3, 6, 9 as the standard quadrants. So you should be aware, as you can see on the third figure, you can see we should know which number comes in the opposite of which number. For example, 12 come opposite to 6, 1 comes opposite to 7, 2 comes opposite to 8, 3 to 9, 4 to 10, 5 to 11 and so on. So similarly, if you cover any one quadrant, you get 1 by 4, 2 1 by 2, 3 by 4 and 1. Yes, as we have done in the direction. कुछ नहीं है, बस डायरेक्शंस में 4 डायरेक्शंस अलग अलग गिवन है, उसमें सर्कल नहीं है. जहाँ पे सर्कल इन्वॉल्व हो गया वहाँ क्लॉक आ गई. डायरेक्शंस के नेम्स की जगह वी हैव रिटन the numbers on the clock. So let us begin with 5.2. First question, what fraction of the clock? Yes, so what fraction of the clock, clockwise rotation. आपको हमेशा पता होना चाहिए क्लास, हमारे पास जो क्लॉक होती है उसमें 2 टाइप की रोटेशन होती है. फर्स्ट हमारे पास होती है क्लॉकवाइज रोटेशन, सेकंड हमारे पास होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट, चलो जी मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कहते हैं अगर हमारा 3 पे है and I have to come to 9. If I want to come to 9, that means I am covering the 2 quadrants. Yes, I am covering 2 quadrants. So when I am covering the 2 quadrants, that means I am doing the A part, which is 1 by 2 revolution. Yes, 1 by 2 revolution. Coming to the B part, 4 to 7. If it is 4 o'clock reaching to 7, yes, so that means 4 to 7. So 4 के सामने हमारे पास था number 10. So I'm covering only one quadrant. So I am getting 1 by 4th revolution. Coming to the C part, 7 to 10. 7 बजे से लेके 10 बजे तक कौन सा एंगल आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए हम एरो अपनी इंक्रीजिंग नंबर्स की तरफ जा रहे हैं. तो 10 के सामने नंबर आता है 4, 7 के सामने आता है 1. सो 7 to 10 is 1 by 4 revolution. Yes, 1 by 4 revolution. क्लियर है, समझ आया सबको? हाँ जी. बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ. डी पार्ट, तो क्लॉक आपको बनानी बहुत जरूरी है. 12 एंड वो कह रहा है क्लॉकवाइज रोटेट करना है. कहाँ तक? 9 तक.
यस, सो 12 के सामने आता है 6, 9 के सामने आता है 3. आप बनाएंगे इसको डॉटेड लाइन में. वी आर कवरिंग 3 क्वाड्रेंट्स, सो इट इज 3/4 रेवोल्यूशन. यस, कमिंग टू द ई पार्ट. 1 to 10, 1 बजे से लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है. कहाँ तक? 10 तक. सो अगेन 10 आता है 4 के सामने, 1 आता है 7 के सामने. I'm covering 3 quadrants, so that means 3/4 revolution. Coming to the F1, 6 to 3, 6 बजे से लेके हमें जाना है कहाँ तक? 3 o'clock. Yes, so again same. I am, how many quadrants I am covering? I am covering 3 quadrants out of 4. So 3/4 revolution. I hope the first question has become very easy for all of you to understand. Yes. All right, let's go forward to question number 2. Where will the hand of a clock stop? अभी तक हमें revolution बताना था. अब हमें क्या बताना है? अब हमको revolution हमें given है. अब हमें ये बताना है कि what time it will be. देखते हैं. देखो, वो कह रहा है 12 o'clock है और आपको रोटेशन कैसी करनी है? क्लॉकवाइज. आपको हाफ रेवोल्यूशन करना है. हाफ रेवोल्यूशन मतलब 2 क्वाड्रेंट्स कवर करने हैं. सो आई एम कवरिंग 2 क्वाड्रेंट्स. So I'm getting number 6 for the A part. It is at 6. Coming to the B1, at 2, 2 बजे है. 2 से हमें हाफ क्वाड्रेंट पे जाना है. 2 के सामने आता है 8. यस, 5 के सामने आता है 11. हमें कितना करना है? हाफ. That is, I am coming to the half and I am getting as 8. At 8. At 6. कोई यहाँ पे AM PM नहीं लिखेगा. Why? Because हमें नहीं पता whether it is 12 AM PM or it is 2 AM PM. Right? Clear है सबको? सेकेंड क्वेश्चन, प्लीज फिगर्स बनाइए बहुत नीटली. जैसे मैंने स्क्रीन पे बनाई है ऐसे ही फिगर्स आपको अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से क्लियरली बनानी है. ओके, सी पार्ट. इट सेज स्टार्ट्स एट 5. 5 पे वो स्टार्ट होती है एंड क्लॉकवाइज जाना है हमें. कहाँ पे? 4 रेवोल्यूशंस. लेट मी सी कैसे बना सकते हैं हम. 5 के सामने आता है 11. यस, so only 1/4. एक ही रेवोल्यूशन पे जाना है हमें. So I'm coming at 8. I'm coming at 8. Okay, coming to the D part. 3/4 करना है. किससे? लेकिन 5 बजे से कहाँ जाना है हमें? क्लॉकवाइज. ध्यान रखिए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आंसर बिल्कुल पूरा चेंज हो जाएगा. प्लीज मेक श्योर यू ऑल आर क्लियर with the clockwise and anti-clockwise direction. है ना? 3/4. 1, 2, 3. 3/4 is at 2. Yes. ये arrows बहुत important है. If you do not make the arrows, the answer is going to be very difficult. Yes. Arrows से आपको पता चलेगा कि direction आपकी clockwise है या anti-clockwise. Is it clear? All right. Let's go to the third part. Which direction will you face if you start facing? अगर हम फेस करना स्टार्ट करेंगे. देखते हैं, अब हमारे पास आ गया डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन. हमारे पास आ गया डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन. ईस्ट पे खड़े हो, हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. कहाँ पे आ गए हम? वेस्ट पे. एट वेस्ट. बी पार्ट. ईस्ट पे खड़े हो, 1/2 मतलब एक बार फुल राउंड और एक बारी सिर्फ हाफ राउंड. तो हम कहाँ पे आ गए? हम फिर से आ गए वेस्ट पे. समझ आया सब बच्चों को? यस क्लास, आर यू ऑल एबल टू हियर मी एंड अंडरस्टैंड इट क्लियर? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ आया या नहीं. क्लॉक एंड डायरेक्शंस बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. थर्ड, सी पार्ट. वेस्ट पे खड़े हैं, 3/4 कहाँ जाना है हमें? एंटी क्लॉकवाइज. तो 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी घड़ी. तो हम कहाँ पहुंच गए क्लास? हम पहुंच गए नॉर्थ में.
बात करते हैं नेक्स्ट डी पार्ट में। साउथ में खड़े हैं, वन मेक फुल रेवोल्यूशन, वन फुल रेवोल्यूशन, चाहे क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, बात एक ही है। सो हम साउथ से फुल रेवोल्यूशन करके वापस कहाँ पे आ गए, साउथ में। तो डी पार्ट में कोई ये मत समझना कि मैम आपने तो डायरेक्शन नहीं दी, आपकी मर्जी है कौन सी मर्जी डायरेक्शन में जाओ, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ। ऑब्वियसली जब वन फुल रेवोल्यूशन करते हैं तो हम चारों क्वाड्रेंट्स को कवर करके चलते हैं, है ना। ऑल राइट, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू, राइट। अब लेट मी डू इट ऑन द स्क्रीन फॉर ऑल ऑफ यू। सो ऐसे ईस्ट, ईस्ट पे खड़े हो और आपको क्लॉकवाइज जाना है, आपको रेवोल्यूशन बनाना है। ईस्ट पे खड़े हो, क्लॉकवाइज आप कहाँ जाओगे, टू द नॉर्थ। तो ऑब्वियसली यू आर कवरिंग 3 पार्ट्स, तो इट इज 3/4। बी पार्ट, खड़े हो कहाँ पे आप, साउथ पे खड़े हो, जहाँ पे खड़े हो उसे सर्कल लगा दो। क्लॉकवाइज कहाँ जाना है हमें, ईस्ट में। सो दैट इज आई हैव रीच्ड ईस्ट। तो ईस्ट में हमें को कितने लगे, 3/4 रेवोल्यूशन। कमिंग टू द सी पार्ट, वेस्ट पे खड़े हो, क्लॉकवाइज जाना है टू फेस ईस्ट। तो मतलब कितने रेवोल्यूशन हो गए, ओनली 1/2 revolution. Is it clear to all of you? Okay. Fifth question, find the number of angles or number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6. देखिए जी, 3 से 6 पे कितने right angle बने, only one right angle. Yes. Okay, coming to the B part, 2 to 8, 2 बजे से लेके 8 बजे तक कितने राइट एंगल हो गए हमारे पास, वी हैव 2 राइट एंगल्स। सी पार्ट, सबसे बेस्ट तरीका है डिवाइड कर लो क्वाड्रेंट को हाफ 4 पार्ट्स, इक्वल 4 पार्ट्स में। यस, जब आप इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे 5 to 11 कैसे बनाएंगे, देखो 5 to 11 is this much, so that is we have found 2 right angles. Yes, okay. D part, 10 to 1, 1 बजे से ले 10 बजे से लेके 1 बजे तक, ये तो सिर्फ एक ही आया, it's only one right angle. 12 to 9 क्लॉकवाइज बोला है, तो ऑब्वियसली लेट मी चेक, 3 आ रहे हैं, 3 राइट एंगल्स, ग्रेट। एफ वाला आप खुद बताओगे, आंसर इन कमेंट सेक्शन, बताओ कितना आ रहा है इसमें, कितने राइट एंगल्स आ रहे हैं, प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, राइट। 6, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब हम कौन सी डायरेक्शन में खड़े हैं, इसमें सिर्फ 4 पार्ट्स हैं। ए पार्ट कहते हैं साउथ में खड़े हो, क्लॉकवाइज जाओ कहां तक, वेस्ट तक। यस, तो हम वेस्ट तक जाने में हमने कितने एंगल्स कवर करे, लेट मी जस्ट इरेज, मेकिंग इट अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। साउथ में खड़े हैं, वेस्ट जाना है, इट्स ओनली वन राइट एंगल। यस, बी पार्ट, नॉर्थ में खड़े हो, एंटी क्लॉकवाइज जाना है ईस्ट में। अरे वाह, 3 क्वाड्रेंट्स कवर करे, तो मतलब हमारे कितने हो गए, 3 राइट एंगल्स। हमेशा ध्यान रखो जितने क्वाड्रेंट्स उतने राइट एंगल्स, राइट। कमिंग टू द लास्ट 2 पार्ट्स, सी पार्ट करते हैं, वेस्ट पे खड़े हो एंड टर्न टुवर्ड्स वेस्ट। अरे वाह, सो हम वापस वेस्ट पे घूम के वापस आगे, सो देयर आर 4 राइट एंगल्स। यस, फिगर्स बनाना बहुत जरूरी है। साउथ में खड़े हैं, टर्न कर गए नॉर्थ में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ मेंशन नहीं है, जैसे मर्जी जाओ, क्लॉकवाइज चलते हैं। so that is I'm covering 2 quadrants, I'm getting 2 right angles. Is it clear to all of you? Yes, is it clear? Okay, so I hope everybody has understood these topics in detail. And 7th question,
कह रहे हैं 6 o'clock हो रहे हैं अभी, टर्न करो वन राइट एंगल टर्न करते ही हमें कितना मिलेगा, वी विल बी एट 9. बी पार्ट 8 o'clock हो रहे हैं और आपको कह रहे हैं 2 राइट एंगल्स टर्न कर जाओ, तो 2 राइट एंगल्स टर्न करने के लिए I will be at 2 o'clock. Yes, coming to the C part. 10, बहुत फास्ट करा रही हूँ आज, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. 10 and turn 3 right angles. 3 right angles का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, 8 o'clock at 8. D part from 7 turn to straight angle. Straight angle क्या होता है, 180 डिग्री का होता है straight angle. Yes, 7 के सामने आता है 1. So 2 straight angles, 1 and 2. So that is complete. Again at 7 I have reached. Yes. So I think everybody has understood. So thanks for watching this video and thanks for your love and support. Now you can join us on Facebook as Learn Easy. You can follow our Instagram page as Learn Easy Online. Please like, share and subscribe the channel for regular updates. Thank you.